Hi everyone, so welcome to my channel, and this is a pickup pile for new moon messages. So we have new moon coming tomorrow, that is 9th July 2021, and this new moon is in Cancer. So it is going to be all about your emotions, your relationships, your connections with your friends, family, colleagues. Okay, it is going to be about self love, your emotional health, your mental well being, all right, and of course your physical well-being and other stuff as well, but the dominating energies will be more about emotions. Okay, that is the collective energy. And also one more thing, if you want to manifest something, new moon is the best time when you can manifest anything. When you want to manifest something, not it is not just about materialistic possessions, of course you can do that, but it is much beyond that. You can manifest mental peace, you can manifest happiness, blessings, anything, कुछ भी आप manifest कर सकते हो, ठीक है. एंड प्लीज़ आप इस चीज़ को न्यू मून को फुल मून के साथ बिल्कुल भी कंफ्यूज मत करना, बिकॉज जो न्यू मून होता है, न्यू मून इज़ व्हेन देयर इज़ नो मून, तो एक पूरी न्यू साइकिल स्टार्ट होती है. एंड फुल मून इज़ अबाउट कंप्लीशंस एंड एंडिंग्स, ठीक है. तो कुछ लोग होते हैं जो रिचुअल्स करते हैं न्यू मून पे, और वो कंफ्यूज हो जाते हैं न्यू मून और फुल मून पे. फुल मून के रिचुअल्स दे डू ऑन न्यू मून, न्यू मून के रिचुअल्स दे डूइंग इट ऑन फुल मून. तो प्लीज़ डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड. एंड yeah, so let's start. So we have two piles here. Pile number one is this with yellow crystal, and pile number two with this brown crystal. Okay, so shall we start? Okay, so for those who chose pile number one with this yellow crystal, let's start your reading fatafat se. So you got your hard work is paying off, a win-win outcome is forecast, and believe in the impossible. So first thing first, if you've been doubting yourself, your capabilities, your abilities, please do not do that. You are good enough. You can create the world, you can create whatever you want to. Okay, you just need to keep working hard, just keep working for it. कहीं पे भी ऐसा लग रहा है that नहीं हो पा रहा है या कुछ भी ऐसा, please do not think that way, ठीक है, because things are moving. You may not see them, but definitely something, universe has been planning something for you. Okay, and your hard work will definitely pay off. That whole luck situation is on your side. You can see that a win-win outcome is forecast. So luck is on your side, universe is guiding you, universe is planning something out for you. So trust that process, trust yourself. Okay, do not doubt yourself. अगर कहीं पे भी self esteem issues है या कुछ भी है, please do not do that. So let's see the overall energies for this new moon. So that means from this new moon till full moon. Okay, क्या energies रहने वाली है आपकी. All right, one thing is for sure, starting में you may think that things are not working. You may see negative in every situation. Okay, maybe everywhere, in your relationships, in your work life, even if it is about yourself, your self confidence, your self esteem, ठीक है. कहीं ना कहीं मेरे को लग रहा है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होगा, बट एट द सेम टाइम आई ऑल्सो थिंक दैट दिस इंटायर स्ट्रेस इज़ काइंड ऑफ अननेसेसरी राइट नाउ. You don't have to take that much of load on your shoulders, because anyhow you're not taking that kind of an action. Now this is for some of you, ठीक है, because कहीं ना कहीं I think even if you are surrounded with problems and darkness and negativity, तो कहीं ना कहीं you're not taking that action कि आप उस चीज़ को लेके एक एक्शन लो एंड उस चीज़ में एक चेंज लेके आओ, ठीक है. सो प्लीज़, अगर आपको उस चीज़ में एक वो चेंज लेके आना है, इफ़ यू वांट थिंग्स टू वर्क इन योर फेवर, प्लीज़ स्टार्ट टेकिंग एक्शन टूवर्ड्स इट, बिकॉज दैट्स हाईली नीडेड. अदरवाइज वो जो रीबर्थ आप चाहते हो, ठीक है, वो जो चेंज, जो ट्रांजिशन आप चाहते हो, वो नहीं आने वाला. अनदर थिंग, जो भी लोग हैं, लाइक आई सेड, दोज हु आर वर्किंग हार्ड फॉर इट, ठीक है, दोज हु आर वर्किंग
on their goals, on their wishes, maybe their relationships, on themselves. जो भी अभी आपकी लाइफ में हो रहा है, जो भी इस न्यू मून साइकिल में होगा, उस एक एक इवेंट को एक एडवेंचर की तरह लेना, ठीक है? बिकॉज ये जितनी भी चीज़ें होंगी, इन चीज़ों के पीछे एक लेसन इन्वॉल्व है, ठीक है? पक्का पक्का से एक लेसन इन्वॉल्व है. सो एंड लाइक आई ऑलवेज से, नथिंग इज़ एक्सीडेंटल. कुछ भी एक्सीडेंटल नहीं होता, एटलीस्ट मैं उस चीज़ में बिलीव करती हूँ. Rest, of course, it's up to you. Let's see what you need to be mindful of. So we got the sun, sacral chakra, that is the second chakra, all tied up, and you got the deceit card as well, ठीक है? So again वही चीज़ है. Oh, there's one more card, appreciation, ठीक है? You guys definitely need to start working on yourself. कहीं ना कहीं काफ़ी लोग हैं जो बहुत ज़्यादा लेज़ी हो रहे हैं. You're not working on yourself, especially on yourself, ठीक है? कहीं ना कहीं आप अपनी सेल्फ ग्रोथ को इग्नोर कर रहे हो, ठीक है? आप अपनी फिजिकल हेल्थ को भी हो सकता है कि काफ़ी लोग हैं जो इग्नोर कर रहे हैं. You're not maybe working out, हो सकता है आप लोग पहले वर्कआउट करते थे एंड नाउ ऑल ऑफ अ सडन कुछ ऐसी एनर्जीज़ की वजह से या स्ट्रेस की वजह से यू डोंट फील लाइक डूइंग इट एनी मोर, ठीक है? तो अगर वो चीज़ है, प्लीज़ डोंट डू दैट, बिकॉज कहीं ना कहीं दिस एंटायर न्यू मून साइकिल इज आस्किंग यू टू फोकस ऑन yourself rather than on your other aspects of your life. Just focus on yourself, because somehow you are not being true to yourself. Most of you, sorry, some of you are being in a denial, ठीक है? कहीं ना कहीं you are deceiving yourself as well. You're not accepting the truth, you're not accepting the reality, ठीक है? तो अगर कुछ ऐसा है, प्लीज़ वर्क ऑन दैट. हो सकता है तो आप सेक्रल चक्र की जो मेडिटेशंस होती हैं, सोलर चक्र मेडिटेशंस जो होती हैं, वो आप कर सकते हो, ठीक है? बिकॉज इट विल ब्रिंग अ लॉट ऑफ एनर्जी एंड अ लॉट ऑफ पॉजिटिविटी इन योर लाइफ, इन योर सेल्फ, ठीक है? सो यू कैन डेफिनेटली डू दैट. And I don't know why, but I think you should definitely do some kind of physical activities, maybe dance, or you can go for swimming, gymming, yoga. घर के काम कर लो, अगर वैसे नहीं करते तो वो भी कर सकते हो, ठीक है? बिकॉज इससे क्या होगा ना, इससे जो वो लेजीनेस अभी आ चुकी है, ठीक है, और जो बैठे बैठे आप सोचते रहते हो, ओवर एनालाइज करते रहते हो, कुछ लोग प्रोकैस्टिनेट करते रहते हैं, तो वो उन सब चीज़ों से आपका जो ध्यान है वो हटेगा, ठीक है? लेट्स सी व्हाट ब्लेसिंग्स आर कमिंग योर वे within the next few months. Look for a sign there's something better and opportunity. So definitely good days are coming, okay? I see some opportunities coming your way, and this is definitely regarding your career, ठीक है? मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फील हो रहा है. एंड ऑल्सो वन मोर थिंग, जो भी लोग अभी इस रीडिंग में कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा अपने करियर को लेके काफ़ी एंथुजियास्टिक हैं, दोज हु हैव बीन वर्किंग रियली हार्ड, मे बी प्रमोशंस के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, ठीक है, रिकग्निशन के लिए या कुछ भी हो सकता है. समवन मे हैव डिसीव्ड यू, ठीक है? हो सकता है कुछ लोगों ने आप लोगों के साथ पॉलिटिक्स की हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोगों को शायद से सैलरी ना मिल रही हो या कुछ भी ऐसा. सो आपको यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट, ठीक है? बिकॉज अगर कुछ भी फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं तो वो फाइनेंशियल इश्यूज़ तो सॉल्व होंगे, पक्का से होंगे, 100% होंगे, ठीक है? एंड वन मोर थिंग, प्लीज़ लुक फॉर साइंस. अगर आपको कुछ नंबर्स दिख रहे हैं, कुछ रेपिटेटिव नंबर्स दिख रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल 1111 दिख रहा है कुछ लोगों को, अगर 999 दिख रहा है, 555 दिख रहा है. एंड वन मोर थिंग, अगर आप लोगों को, काफ़ी लोगों को 666 दिख रहा है, सो प्लीज़ बी अवेयर, ठीक है? एंड कहीं ना कहीं यू नीड टू टेक अ स्टेप बैक. अगर आप किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा ओवर कर रहे हो, सो प्लीज़ टेक अ स्टेप बैक. मे बी यू नीड टू टेक अ स्टेप बैक एंड फोकस ऑन योर सेल्फ, ठीक है? सो डू दैट. एंड जो भी आप एक आउटकम चाहते हो,
ठीक है, जिस भी एस्पेक्ट में, बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप लोग ये जो आउटकम चाहते हो, ये जो पॉजिटिव चेंजेस चाहते हो, वो आप शायद से अपने करियर में चाहते हो, ठीक है, आप अपने फाइनेंसेस को लेके चाहते हो, कुछ लोग हो सकता है कि अपनी रिलेशनशिप्स को लेके भी चाहते हो, बट मुझे इतना ज़्यादा रिलेशनशिप्स वाला वो एनर्जी दिख नहीं रही है इस पाइल में अभी तो फ़िलहाल, बाकी वील सी, ठीक है। सो वो सब चीज़ें विद इन फ्यू मंथ्स रिकवर हो जाएगी, ठीक है। और मे बी जो भी अभी चीज़ चल रही है, ठीक है, उस चीज़ को एक जस्ट टेक इट एज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, बिकॉज लाइक आई सेड, जो भी अभी कुछ हो रहा है, ये सब चीज़ें एक रीज़न की वजह से हो रही हैं, आपको कुछ ना कुछ लेसन सिखाने के लिए कर रहा है यूनिवर्स, ठीक है। लेट्स सी फ्यू additional messages for you people. So we got the 8 of swords, 2 of wands, the fool, the judgment, and 3 of swords. Now here, those who are wanting to take an action towards someone, maybe towards your person or a new connection, or maybe giving a second chance to someone from your past, ठीक है, कहीं ना कहीं you are wanting to do that, but then again you're restricting yourself, you are kind of scared, you are nervous, ठीक है, because कहीं ना कहीं आप नहीं चाहते कि आपका वो हार्ट ब्रेक हो, ठीक है। हो सकता है पहले कहीं ना कहीं आप लोगों को किसी ना किसी ने चीट किया हो, थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है, ठीक है, इस पाइल में। और अब आप वो शायद से वो एक रिस्क नहीं लेना चाहते हो, कहीं ना कहीं कुछ लोग हैं जो बहुत लेज़ी हो चुके हैं, अगर रिलेशनशिप्स की बात करते हैं तो, ठीक है। यू जस्ट want to be in that comfort zone, ठीक है, even if you want to take a step in this entire connection that you are in, those who are in any sort of a connection or situation with someone, वहाँ पे कहीं ना कहीं I do see that potential, and I do see that you do want something to happen in this relationship, but again you're not being able to make that choice, ठीक है। सो इफ़ दैट्स द केस, प्लीज़ टेक दैट रिस्क, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो आपके पास में हुआ, इट्स नॉट नेसेसरी कि वही आपके आगे लाइफ में भी हो, ठीक है। तो इसलिए ऐसे अननेसेसरी अजम्पशंस तो मत ही बनाओ, ठीक है, बिकॉज वो अजम्पशंस बना के कुछ नहीं होगा, वो रिस्क आपको लेना ही पड़ेगा, तभी आपको पता चलेगा और तभी आपको समझ आएगा कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है, क्या नहीं है, ठीक है। बिकॉज मुझे लग रहा है जब तक आप वो एक रिस्क नहीं लोगे ना, तब तक वो एक रियलाइजेशन, वो एक जो अवेकनिंग आनी चाहिए ना, वो नहीं आएगी, ठीक है। एंड कुछ लोगों के लिए आई ऑल्सो सी दैट आपकी वर्क लाइफ में, ठीक है, कुछ टाइम में पीपल विल प्रेज यू, ठीक है। You may get standing ovation from your boss and from other people, okay, you may get recognition, but then that will happen in next few months. I cannot promise that happening in this entire cycle, in this new moon cycle, but definitely आने वाले कुछ months में वो एक न्यू बिगनिंग आपकी वर्क लाइफ में, आपके फाइनेंसेस में डेफिनेटली आएगी। और कुछ कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि यहाँ पे इट्स नॉट मोर अबाउट प्रमोशंस और फाइनेंसेस, बट इट इज़ मोर अबाउट रिकग्निशन, ठीक है। मे बी यू आर वर्किंग सो हार्ड, बट देन अगेन यू आर नॉट गेटिंग व्हाट यू डिज़र्व। वो जॉब में हो सकता है, हो सकता है कि आपने एक न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट किया हो, इट कुड बी अ न्यू वेंचर, कुछ भी। सो प्लीज़ सी टू दैट। नाउ लेट्स see few messages from the tea leaf, and we'll see where they fall. And okay,
एक तो कंफर्मेशन आपको मिल ही गया है कि मनी विल बी कमिंग टू यू, तो जो भी आप हार्ड वर्क कर रहे हो, ठीक है, जो भी आप रिकग्निशन चाहते हो वो आपको डेफिनेटली मिलेगा, ठीक है, उस चीज़ में वो रिबर्थ आएगा, पक्का से आएगा। एंड वन मोर थिंग, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हों, ठीक है, दैट मे टेम्प्ट यू, ठीक है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि वो अपॉर्चुनिटी, और इट कुड बी अ पर्सन, इट कुड बी अ न्यू पर्सन, इट कुड बी अ पर्सन फ्रॉम योर पास्ट, एंड इट कुड बी समवन फ्रॉम योर फ्रेंड सर्कल, ठीक है, जहाँ पे कहीं ना कहीं दे मे टेम्प्ट यू, देयर एनर्जीज, देयर ऑरा, that may tempt you definitely, so that will be a test from the universe, because कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपके पास्ट में कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस रह चुके हैं जहाँ पे आपने बहुत ज़्यादा सैक्रिफाइस किया है, ठीक है, आपको काफ़ी जगहों पे आप लोगों को एक वो हार्ट ब्रेक वाली जो चीज़ होती है वो कहीं ना कहीं आप लोगों ने एक्सपीरियंस की है, ठीक है, चाहे वो फ्रेंड्स को लेके भी हो, कुछ लोगों के फ्रेंड्स भी ऐसे हो सकते हैं कि आप लोगों ने एक्सपेक्ट ना किया हो और आपके फ्रेंड्स ने कुछ ऐसी चीज़ें की हो जो आपको बहुत बुरी लगी हो, जिसकी वजह से आप बहुत डिसअपॉइंट हुए हो, ठीक है, तो आई थिंक वही चीज़ हो सकता है रिपीट हो, ठीक है। अब it's not necessary that it would be the same person, it could be with someone new, and it could be with someone from your past, from your friend circle, from your family, कहीं से भी हो सकता है, but I see this person is from your friend circle or could be a new person, ठीक है, because I don't think you have dated this person, ठीक है, बट कहीं ना कहीं कुछ एक वो सिचुएशनशिप वाली जो चीज़ थी वो थी इस पर्सन के साथ, तो वो वाली चीज़ वापस से हो सकती है, ठीक है। लाइक आई सेड, सी अ डिस्टेंट फ्रेंड इज़ थिंकिंग ऑफ यू, ठीक है, तो कोई ना कोई डेफिनेटली है जहाँ पे शायद से आप लोग इतने टॉकिंग टर्म्स पे नहीं थे, या हो सकता है वो आप यू डोंट लिव इन द सेम सिटी या कुछ भी ऐसा, सो दे मे वांट टू कम बैक, ठीक है, सो इसलिए कुछ भी ऐसा एक्शन मत लेना जहाँ पे यू मे रिग्रेट, ठीक है, या फिर आपको इतना ज़्यादा रोना धोना करना पड़े कि यू नो वापस मेरे साथ ऐसा हो गया या वैसा हो गया। प्लीज़ अपने आप को सिचुएशन में बिल्कुल भी मत डालना, बिकॉज यूनिवर्स इज़ टेस्टिंग यू, ठीक है। आप लोगों ने अगर कुछ ना कुछ सेल्फ वर्क किया है, आपने जो भी अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से सीखा है, नाउ इट्स द टाइम वेयर यू कैन इम्प्लीमेंट दैट नॉलेज, दोज एक्सपीरियंसेस in reality, ठीक है, in your real life, then successful outcome to your problems, and ये सीधा सीधा लेजीनेस पे आया है, ठीक है, सो डेफिनेटली जो की है, जो भी आप आउटकम चाहते हो, ठीक है, द ओनली सोल्यूशन फॉर दैट इज टू कम आउट ऑफ दैट लेजीनेस, ठीक है, सिर्फ सोच के या स्ट्रेस लेने से तो कुछ होगा नहीं, तो अपनी उस लेजीनेस से निकलो, उस चीज़ को लेके एक्शन लो, एंड थिंग्स विल स्टार्ट वर्किंग इन योर फेवर। देन वी गॉट द टी पॉट, डीप फ्रेंडशिप विद समवन ऑफ द सेम सेक्स, ओके, तो कुछ लोगों के लिए जैसे कि मैंने बोला कि ये मुझे कुछ करियर में लग रहा है, ठीक है, एंड आपकी जॉब में या कहीं पे भी ऐसा हुआ है कि आपके जो फ्रेंड है या कलीग है जिनको आप काफ़ी ट्रस्ट करते थे या कुछ भी ऐसा, उन्होंने हो सकता है कि कुछ गलत किया हो आपके साथ, तो जस्ट बी अवेयर ऑफ दिस पर्सन, ठीक है, ज़्यादा कुछ इतने एक्शन मत लेना इस पर्सन को लेके। और कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि लेट मी जस्ट टेक वन मोर कार्ड फॉर दिस। Increase your efforts if you want to achieve your goals. So definitely जो लोग भी, even if it is about same sex, please if you're not talking to your friends or maybe someone in your family या कुछ भी ऐसा, please talk to them, stay connected, because कहीं ना कहीं maybe you or your friend is in a really bad condition right now, ठीक है, कहीं ना कहीं they may need you but then they are hesitating to ask for that help, for that helping hand, ठीक है, so it's okay if you can text them, it would be great if you could text them,
ठीक है. एंड अनदर थिंग इज़ दैट फॉर दोज हु आर इन अ रिलेशनशिप और दोज हु लाइक समवन या किसी भी टाइप की सिचुएशन में इन्वॉल्व हैं किसी के साथ, प्लीज़ पुट एफर्ट्स. ठीक है, मेक अ चॉइस एंड टेक दैट रिस्क. एंड आई एम श्योर यू विल नॉट रिग्रेट दैट, बिकॉज कहीं ना कहीं आपको काफ़ी एक रियलिटी चेक मिलेगा, आपको काफ़ी कुछ रियलाइज़ होगा. ठीक है, एक अवेयरनेस आएगी. देन यू गॉट द योक फीलिंग टाइट डाउन और फ्रस्ट्रेटेड. ठीक है, तो वही चीज़ है. अगर आपको लग रहा है कि इस सिचुएशन में कुछ नहीं हो सकता, या फिर अगर आप इस सिचुएशन को एक चांस और दोगे या आप इस पर्सन को एक चांस और दोगे, तो शायद से हो सकता है कि आप वापस से डिसअपॉइंट हो जाओ. ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा. एंड आई थिंक अब आप इतने ज़्यादा मेच्योर भी हो चुके हो, आपने कहीं ना कहीं अपने ऊपर बहुत ज़्यादा सेल्फ वर्क किया है, और उस सेल्फ वर्क की वजह से ना अब आपको कुछ भी उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगा जितना आपको पहले करता था. ठीक है, तो अगर कुछ ऐसा होगा भी तो आई एम श्योर यू विल हैंडल इट इन अ much more mature and in a much more wise manner. ठीक है, because your experiences, your lessons have made you a wise person. I see this, most of you are a self-made personality. ठीक है, आप लोगों ने अपने ऊपर बहुत ज़्यादा हीलिंग किया, आप लोगों के साथ काफ़ी सारे एक्सपीरियंसेस हुए हैं, एंड नाउ इट्स टाइम दैट यू स्टार्ट लर्निंग फ्रॉम दोज लेसन्स. ठीक है, एंड वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू मैंशन इज़ दैट जब तक आप लोग अपने इन लेसन्स पे वर्क नहीं करोगे ना, यूनिवर्स विल कीप पोकिंग यू. अब यूनिवर्स का क्या फंडा होता है ना, व्हेन यूनिवर्स वांट्स टू मेक यू अवेयर अबाउट समथिंग, यूनिवर्स विल फर्स्ट पोक यू. अगर आप तब भी नहीं समझोगे तो यूनिवर्स विल स्लैप यू, और तब भी नहीं समझोगे तो यूनिवर्स विल किक यू आउट. एंड उसके बाद जाके आपको वो एक अवेकनिंग आती है कि हाँ भैया अब संभल जाओ. ठीक है, सो वही चीज़ है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं. ठीक है, सो एंड प्लीज़ ऑफेंड मत होना इस बात पे, मजाक ही करती हूँ मैं तो, बट सच भी है ये. सो या आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय. आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो. थैंक यू. So this is for pile 2, those who chose this brown crystal. So we got show the world real you, prosperity lies ahead, don't let pride get in your way. ठीक है, कुछ लोगों ने अपने ईगो इश्यूज़ पे डेफिनेटली काम किया है. आप लोगों में से काफ़ी लोग हो सकते हैं जिनके साथ काफ़ी ज़्यादा ईगो इश्यूज़ हों, एंगर इश्यूज़ हों, एंड यू मे हैव वर्कड ऑन देम. ठीक है, बिकॉज आई डेफिनेटली सी दैट you people have worked on yourself. आप लोगों ने अपने ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया है. ठीक है, because while I was reading about pile 1, वहाँ पे जो energies थी वहाँ पे थी they are yet to work on themselves, but यहाँ पे it's quite different. And I also see that you'll start seeing those changes in this new moon cycle, because you have been working really hard on yourself, and now it's time that you show the world who you are. Okay, just be authentic, don't be afraid. ठीक है, बिल्कुल भी कहीं पे भी if you used to feel embarrassed about something या कुछ भी ऐसा, now the situation is not the same. Now I see you people a bit more, a lot more confident. Okay, someone who is proud of themselves, someone who loves themselves. ठीक है, I see a lot of confidence. ठीक है, so let's see the energies for this new moon cycle. तो कुछ लोग हैं जो भी मैस्कुलिन्स इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए आई वुड से कि कहीं ना कहीं आप लोगों को कुछ ना कुछ गिल्ट है. ठीक है, एंड ये जो गिल्ट है हो सकता है कि आपके कुछ लोगों को जो गिल्ट है वो हो सकता है कि आपके फैमिली में जो भी आपके रिलेशनशिप रहे हों आपके फादर के साथ या किसी भी अथॉरिटेटिव फिगर के साथ, हो सकता है वो अच्छे ना रहे हों, एंड नाउ यू मे वांट टू इम्प्रूव दैट कनेक्शन
with them, ठीक है. But for most of you, I think that this is regarding someone you used to love and someone you still love, all right. For masculines, because कहीं ना कहीं आप लोगों की ईगो की वजह से you were so passionate about your career or maybe some other stuff that you did not focus on this connection, you did not put efforts in this connection, all right. and वहाँ पे उस चीज़ को लेके आप लोगों को definitely वो guilt है, ठीक है. अब वो गिल्ट हुआ है, ठीक है. एंड आई थिंक वो पास्ट में है एंड उस गिल्ट से आप लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा है, आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट किया है और उस सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट की वजह से आप लोगों के काफ़ी सारे शैडो पार्ट्स हैं जो हील हुए हैं, ठीक है. दैट इज़ फॉर श्योर. बहुत सारी आपकी कुछ ऐसी टॉक्सिक साइकिल्स थी, कुछ ऐसी कंडीशनिंग्स थी आप लोगों की जो हील हुई है और कुछ लोगों की होंगी इस न्यू मून साइकिल में, ठीक है. बहुत सारी होने वाली है, बहुत सारी, ठीक है. कुछ लोग, काफ़ी लोग जो होंगे वो कार्मिक रिलेशनशिप से निकलेंगे, काफ़ी लोगों की कार्मिक रिलेशनशिप में जो भी थे उन लोगों की हीलिंग होगी, ठीक है. और जो भी मैस्कुलिन्स देख रहे हैं, you will finally open yourself to love, all right. बिकॉज कहीं ना कहीं यू वर डेफिनेटली क्लोज्ड ऑफ, ठीक है. आप लोगों का मे बी आप लोगों के कुछ ऐसे अटैचमेंट इश्यूज़ हों, कुछ लोगों के लिए हो सकता है एक वो लस्ट वाली एनर्जी भी मुझे लग रही है, ठीक है. बट डेफिनेटली आप लोगों ने उस चीज़ पे वर्क किया है एंड बहुत सारी हीलिंग होने वाली है आपके हार्ट चक्रा में इस पूरे न्यू मून साइकिल में, ठीक है. एंड फॉर द फेमिनिन्स, जो भी फेमिनिन्स देख रहे हैं, तो जो आपके पर्सन हैं उनको डेफिनेटली गिल्ट हो रहा है एंड उन्होंने काफ़ी ज़्यादा, लाइक आई सेड, कि काफ़ी ज़्यादा उन्होंने सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट किया होगा एंड दे विल डेफिनेटली रिटर्न इन दिस न्यू मून साइकिल, ठीक है. बिकॉज दे have actually worked on themselves. अगर उन्होंने कुछ ब्रेक लिया है या यू नो if they asked for some space from you या कुछ भी ऐसा, so that's a good thing, because वो जो space ली है उन्होंने या कुछ भी किया है वो ऐसे ही you know मज़े करने के लिए नहीं की थी उन्होंने, ठीक है. I think that was needed और उस चीज़ का उन्होंने बहुत अच्छे से उस टाइम को यूटिलाइज भी किया है. नाउ लेट्स सी व्हाट यू नीड टू बी माइंडफुल ऑफ. सो डेफिनेटली कुछ लोग हैं जो स्पेशली फॉर द मैस्कुलिन्स हियर, यहाँ पे कुछ लोग हैं जो एक रिलेशनशिप को सेकंड चांस देना चाहते हैं, ठीक है. एंड आई थिंक यू शुड डेफिनेटली गिव दिस अ शॉट, पक्का से, बिकॉज दिस पर्सन इज़ क्वाइट मेच्योर, इमोशनली मेच्योर, ठीक है. एंड आई थिंक यू डू नीड समवन लाइक दैट इन योर लाइफ, दैट इज़ फॉर श्योर. सो आप लोग हो सकता है जो मैस्कुलिन्स हैं वो हो सकता है कि आप कम्युनिकेट करो या कुछ भी ऐसा. एंड फॉर द फेमिनिन्स, जो भी आपके पर्सन होंगे, लाइक आई सेड दैट दे मे रिटर्न एंड दे मे टेक्स्ट यू एंड स्टफ लाइक दैट, बट प्लीज़ डू नॉट एक्सपेक्ट दोज लवी डवी काइंड ऑफ मैसेजेस फ्रॉम देम, बिकॉज दे आर क्वाइट शाई, बिकॉज उनका ये फोर्टे नहीं है कि वो ऐसे लवी डवी मैसेजेस कर रहे हैं या कुछ भी ऐसा, ठीक है. सो वो हो सकता है बहुत चिल्ड आउट मैनर में आपको टेक्स्ट कर रहे हैं या कॉल कर रहे हैं, ठीक है. दे मे आस्क यू टू हैंग आउट और स्टफ लाइक दैट. एंड वन थिंग, whether you are a masculine or you are feminine, please do not stop loving yourself, ठीक है. आपकी लाइफ में चाहे कुछ भी हो, आपकी लाइफ में कोई भी पार्टनर आए जाए, कुछ भी हो, ठीक है, लेकिन आपको अपनी ये जो सेल्फ हीलिंग वाली जर्नी है जो आप लोगों ने स्टार्ट की थी या की हुई है, यू डोंट हैव टू स्टॉप दैट, ठीक है. यू हैव टू कंटिन्यू हीलिंग, बिकॉज क्या होता है कि जो हीलिंग प्रोसेस होता है ना, वो कभी भी एंड होता ही नहीं है, टू बी ऑनेस्ट, है ना. कुछ ना कुछ ऐसे इश्यूज आते रहते हैं, कुछ ना कुछ, एंड वो चाहे ना भी हो, बट स्टिल यू ऑलवेज नीड टू लव योर सेल्फ, है ना. बिकॉज जब तक यू विल नॉट, टिल द टाइम यू डोंट लव योर सेल्फ,
no matter who loves you, no matter how much efforts they are putting in this relationship or in this situation or anywhere else, you will never be satisfied. Why? Because you're not satisfied with yourself, because you don't love yourself that much, maybe. All right, you don't love yourself enough that that you could appreciate someone else's love as well, because we all have different love languages, right? I may gift you something, and that may be my love language, right? Or I could give you hugs and maybe just ask you whether you've eaten or not and stuff like that. Maybe that is my love language. So सबका love language होता है, वो बहुत अलग होती है. Right now let's see what blessings are coming your way. बहुत जल्दी डेफिनेटली आप लोगों की कम्युनिकेशन तो आ ही रही है, ठीक है. और मुझे लग रहा है कि काफ़ी लोगों ने ना हेल्प भी ली होगी कहीं ना कहीं से, किसी ना किसी चीज़ को लेके, चाहे आपने अपने फ्रेंड से बात की होगी कुछ गाइडेंस के लिए, कुछ लोगों ने टैरो से ली होगी, कुछ लोगों ने साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर्स, कुछ भी हो सकता है, ठीक है. एंड जो लोग कहीं ना कहीं फिज़िकली इतना ज़्यादा फिट नहीं थे, ठीक है, जिनके साथ थोड़े बहुत हेल्थ इश्यूज चल रहे थे, प्लीज़ एक्सपेक्ट स्पीडी रिकवरी. ऑल राइट. एंड बाकी तो लॉट ऑफ बिग हैप्पी चेंजेस आर कमिंग योर वे. मतलब क्या ही बोलूँ मैं इस रीडिंग में, क्या ही बताऊँ मैं आप लोगों को, बिकॉज बहुत सारे हैप्पी चेंजेस आने वाले हैं, ठीक है. और इसी न्यू मून में आएंगे, दैट इज़ फॉर श्योर. बहुत दे विल कम्युनिकेट यू, अ लॉट ऑफ पीपल में कम्युनिकेट यू. बहुत सारे आपके पास्ट से जो फ्रेंड्स हैं वो लोग भी आ सकते हैं, ठीक है. और कुछ लोगों से, आप लोगों से काफ़ी लोग हेल्प लेने के लिए भी आएंगे, ठीक है. कुछ लोग जो भी लाइफ कोच हैं या कुछ भी हैं, या इन जनरल दोज हु आर वाइज, आप लोगों से काफ़ी लोग हेल्प लेने के लिए आ सकते हैं, गाइडेंस के लिए आ सकते हैं. सो दे विल reach out to you, they will communicate, they will text you, and they may ask for help. So let's see some additional messages. Okay, so I think this is for all the feminines. So your person is planning to text you for sure. उन्होंने कहीं ना कहीं they have made up their mind that I need to take some action and I want that transition, I want that transformation in this relationship. They may come for forgiveness, they may want you to forgive them, and कहीं ना कहीं बहुत secretly करेंगे, वो बहुत open होके तो नहीं करने वाले, ठीक है. बहुत twist करके, अपने वर्ड्स को मोल्ड करके ऐसे बात करेंगे, ठीक है. तो वो चीज़ डेफिनेटली होगी. तो अगर जो भी लोग सेपरेशन में हैं, ठीक है, या इफ़ यू आर नॉट ऑन टॉकिंग टर्म्स, सो वो जो रेस्ट का वो जो पीरियड था, ठीक है, वो ख़त्म होने वाला है, पक्का से ख़त्म होने वाला है. कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि मिड में, इस न्यू मून साइकिल के मिड में ख़त्म होगा. कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि एंड में जाके ख़त्म होगा. ऑल राइट. और उसके बाद बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं, बहुत सारे. So there's definitely light at the end of the tunnel. और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से काफ़ी लोगों ने ना अपनी उस ओल्ड सेल्फ को, जो कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए टॉक्सिक थी, एंड यू नो दैट इट वाज काइंड ऑफ टॉक्सिक फॉर यू, तो आप लोगों ने उस चीज़ को कम्प्लीटली हील किया है. आप लोगों को, एटलीस्ट जिन लोगों ने नहीं किया, कुछ लोग हैं जो कर रहे हैं, तो इस न्यू मून साइकिल में वो सब चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी, ठीक है. यू विल कम आउट एज समवन न्यू. ऑल राइट. अ न्यू पर्सनैलिटी. कुछ लोग, ऑल्सो वन मोर थिंग, ऐसे कुछ लोग हो सकते हैं जिनको पाइल 1 भी अट्रैक्ट किया हो. सो यू कैन वॉच बोथ द पाइल्स इफ़ यू वॉन्ट टू. Let's see few messages from the tea leaf and then we'll end the reading.
एक एक करके लेते हैं. सो फर्स्ट वी गॉट द व्हील, allowing your life to ramble aimlessly, and indecisiveness. So like I said, पहले हो सकता है कि आप लोग या आपके जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं काफ़ी कंफ्यूज्ड थे एक रिलेशनशिप को लेके, आपको लेके. दे डिडंट नो हाउ टू एक्ट और हाउ टू रिएक्ट इन दैट सर्टन सिचुएशन, or maybe at that particular time. So definitely they do feel bad about it. All right, then we got dark man, dealings or relationship with a man with dark complexion or hair. So for this is for the feminines, and it could be for men as well. So you just see how it resonates with you. So someone from your past, and also this could be someone new, and हो सकता है this person is quite hairy. इनकी बियर्ड बहुत ज़्यादा हो सकती है, हो सकता है दे हैव लॉन्ग हेयर, थोड़ा ही हो सकता है कि डार्क कॉम्प्लेक्शन हो कुछ लोगों का. सो ये जो पर्सन है दे आर वॉचिंग यू, ठीक है, एंड बहुत सीक्रेटली, बहुत मतलब होता है ना, they are actually admiring you, they adore you, they want to talk to you. और कुछ तो है कि वो आपसे शादी वादी के भी ख्वाब देख रहे हैं. ठीक है. सो कुछ लोग, लाइक आई सेड, कुछ लोग हैं, ठीक है, जिन्होंने अपने ऊपर वर्क किया है, ठीक है. जो लोग ऐसे थे जो शायद से रिलेशनशिप्स को लेके या कमिटमेंट इश्यूज थे आप लोगों में से कुछ लोगों को या आपके पर्सन को, तो वो जो इश्यूज होंगे ना वो हील होंगे, ठीक है. उस चीज़ में आपके पर्सन को या आपको क्लैरिटी मिलेगी या मिली है. एंड हो सकता है कि वो चाहे कैसे भी बात कर रहे हैं आपसे, चाहे वो बहुत एक चिल्ड आउट मैनर में आके बात कर रहे, लेकिन जो उनके इंटेंशंस होंगे वो एक सीरियस कमिटमेंट वाले जो इंटेंशंस होते हैं वो होंगे. दैट इज़ फॉर श्योर, ठीक है. एंड दोनों ही, यहाँ पे भी कम्युनिकेशन का कार्ड है, यहाँ पे भी कम्युनिकेशन का कार्ड है. सो डेफिनेटली देयर इज समथिंग पॉजिटिव एंड समथिंग लॉन्ग लास्टिंग फॉर यू पीपल. अच्छा, ओके, लाइफ स्केल्स, ठीक है. कीप योर लाइफ बैलेंस, एंड दिस फेल अपॉन ऑन एंजल ऑफ लव, दैट इज़ फॉर सेल्फ लव, ठीक है. सो नो मैटर आपकी लाइफ में कोई भी आए, ठीक है, अगर एक रोमांटिक रिलेशनशिप आप स्टार्ट करते हो या, ठीक है, फॉर दोज हु आर ऑलरेडी मैरिड या कुछ भी ऐसा, प्लीज़ बैलेंस योर लाइफ, बिकॉज कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप अपनी लाइफ को थोड़ा सा लाइटली लेने लग जाओ. वंस दिस पर्सन अराइव्स, आपने जितनी भी मेहनत की है या कुछ भी की है, हो सकता है वापस से ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि वो जो मेहनत है वो सब खराब हो जाए, है ना. यू जस्ट कीप लविंग योर सेल्फ, ठीक है. अपने आप को टाइम देते रहना, ठीक है, बिकॉज दैट पर्सनल स्पेस इज़ रियली इम्पॉर्टेंट. हम स्टार्टिंग में वी डू नॉट रियलाइज दैट हाउ मच इम्पॉर्टेंट दैट पर्सनल स्पेस इज़. सो प्लीज़ टेक दैट पर्सनल स्पेस फॉर योर सेल्फ, ठीक है. गिव टाइम टू योर सेल्फ, डू वॉट यू लव. Also we got ring, women, younger women. ओए होए होए होए. अच्छा, कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि you people are quite confused. Now this is for those who are confused between two people, ठीक है. कुछ लोग हो सकता है कि एक थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, ठीक है, एंड आपको चूज़ करना हो. कुछ लोगों के पास चॉइसेस आ सकती हैं इन दिस न्यू मून साइकिल, ठीक है. काफ़ी लोगों के पास एक अरेंज मैरिज प्रपोजल हो सकता है, और एक हो सकता है एक चॉइस हो आपके पास्ट में और एक न्यू रिलेशनशिप में, ठीक है. कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि दोनों ही पास्ट रिलेशनशिप्स हैं एंड दो लोग हैं, एंड यू मे हैव टू चूज़ समवन फ्रॉम दीज टू पीपल, ऑलराइट. एंड जिसको भी आप चूज़ करोगे ना, आप जिसको चूज़ करोगे या आपके पर्सन जो भी होंगे, पहली बात तो ये, आप जिसको भी चूज़ करोगे, दिस इज़ फॉर मैस्कुलिन्स, तो
डेफिनेटली आप एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के पर्पज से ही यू विल चूज देम. एंड फॉर फेमिनिन्स आई थिंक योर पर्सन विल चूज यू. ओके, they may have been seeing someone or there could be someone in their life या कुछ भी जिसकी वजह से हो सकता है वो एक कन्फ्यूजन रहा हो या एक ब्रेक आ गया हो, बट दे विल एट द एंड दे विल चूज यू. ठीक है. एंड देन वी गॉट द यंगर मैन, डीलिंग्स और रिलेशनशिप्स विद द यंगर मैन. तो हो सकता है कि कुछ लोग आप लोग जो इन्वॉल्व हो, स्पेशली फॉर द फेमिनिन्स, यू आर डीलिंग विद समवन हु हैज़ दैट चाइल्ड लाइक नेचर. ओके, or who has that childlike energy maybe, and maybe they are younger to you. all right, so जो भी है, this is a confirmation for especially for those जिनके person जो है वो हो सकता है जो आपसे एज में छोटे हों या फिर उनका वो एक चाइल्ड लाइक नेचर हो. ठीक है, तो वो पर्सन जो है वो डेफिनेटली उनको कुछ ना कुछ रियलाइज़ होगा एंड दे विल कम टू यू एंड दे आर प्लानिंग. वो पूरा प्लान कर रहे हैं कि कैसे टेक्स्ट करना है, कैसे नहीं करना, बिकॉज अगेन वो इतने ज़्यादा एक्सप्रेसिव तो है नहीं, है ना. तो वो वाली चीज़ है. और हो सकता है ये पर्सन जो है वो वैसे तो बहुत सोशलाइज करते हो, बहुत ट्रैवल करते हो. दिस कुड बी समवन हु इज़ रियली चार्मिंग एज वेल. I'm getting Libra vibes, Leo, Earth signs. बाकी तो मैं बता ही चुकी हूँ. ठीक है, so yeah, I think that's it for today. I'll see you in the next video. Bye bye.